ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਾਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਵਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। और मैं ना हिंदी दे विच या उर्दू दे विच गल करांगा ताकि ज़्यादा लोग समझ सकन। मेरा ना शुरू से एक मानना मेरा रहा है, या मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग रही है, मैं इस चीज़ की तरफ तवज्जो ज़्यादा, ये पर्सनल है मेरा, हो सकता है किसी और का कुछ और हो। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं ये जो इस्लाम कबूल करवाने वाला मामला है ना, इससे मैं थोड़ा सा अवेयर रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बुरी चीज़ है, बड़ा उत्तम काम, बड़ा अच्छा काम है, मगर मैं पर्सनली इससे अवेयर रहता हूँ। उसकी वजह यह है कि जिसने इस्लाम कबूल करना है उसने अल्लाह के लिए करना है। मेरा बीच में रोल ना भी हो, इस्लाम ही कबूल करना है ना किसी ने, तो वो जरूर करे। अगर अब लोगों को मोहब्बत है, वो कहते हैं कि जी आप कलमा पढ़ाएं, इस तरह की कोई चीज़ है, तो उनका अपना शौक है। अदरवाइज मैं पर्सनली इस चीज़ से दूर रहता हूँ। ए मेरा जड़ा सी ना पक्ष सी, जड़ा मैं दस छड़िया ताकि लोगों को पता चल जाए। मेरे नज़दीक दावत तो ज़्यादा सानू ट्रीटमेंट की जरूरत है। मेरे नज़दीक मनना है कि कुछ बुत होंदे ने, वो बातां ले होंदे ने, कुछ ने लतां ले। मियां मोहम्मद बख्श साहब एक शेर पढ़ते हैं, पंजाबी दे शायर सन, सूफी। वो कहते ने, खासां दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, खासां दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, कि मिठी खीर पका मुहम्मद कुत्ते अगे धरनी। ठीक है, देसी खीर नूं हजम नहीं हुंदा, ठीक है ना जी। ते जिहदे नसीब च होएगा आपे पे आएगा, वो तुहानूं खिचण दी लोड़ ही कोई नहीं। ठीक है। पता इत्थे ना किसान अंदोलन होया सीगा नहीं, ते तुहानूं पता होगा कि नहीं किसान अंदोलन बारे। जी जी, मैनूं पता चलिया सी, बड़ा बैन कीता सी इन्हां ने। हाँ या ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਸ ਆਫ ਟਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸ 'ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ। ब्राह्मण कि नहीं, मैं गलत है कि नहीं, पता नहीं ब्राह्मण इन्वॉल्व नहीं सी। हाँ, बरतानवी गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਸੀ, ਕਾਦੀਆਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗਾਉਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਿਆ ਨਾਮ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੀ 1839-40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤਾ ਪੌਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਵੇ ਚੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬਣ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲੌਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ पे ਗੱਲ करना है। खैर ठीक हो गया जी, और तुसी कुछ कहना चाहो तो जरूर कह लो ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਨੇ ਆ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਕੈਸਰ ਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਈਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं कैसर भाई ठीक है, राजपूत ने वो एक चंद्रवंशी तो आए ने, मगर वो लाहौरी ने पंजाबी, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਜੁੱਟ ਇੰਜ ਯਾਰੀ, ਤੇ ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल बेफिक्र रहो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਨਾ ਅਲੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ YouTube 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਲਾਈਵ ਵਿਦ ਅਲੀਨਾ ਅਲੀ, ਲਿਖ ਲਵੋ ਲਾਈਵ ਵਿਦ ਅਲੀਨਾ ਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੈਨ, ਓਕੇ ਹੈ ਅਕੀਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ पे बनाते हो, माशाल्लाह क्या बात है, ठीक हो गया, चलो ठीक, ओके फिर सलामत रहो, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। ले जी, हमारी एक पंजाबी सिख सिस्टर थी, बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। अब उनको उर्दू हिंदी आती नहीं थी तो मुझे मजबूरन पंजाबी बोलनी पड़ी है, मगर यह है कि पंजाबी का अपना लुत्फ है, तो जिन लोगों को तो आती है उनको तो एंजॉय करने का मौका मिल गया है बात सुन के, और अपना सा एक लुत्फ आ जाता है। मुझे याद है कि हम परदेश काट रहे थे तो ज़माना हो गया अपनी ज़ुबान बोली हुई, अब सारे परदेसी, कभी ऐसा कोई बंदा नज़र ही ना आया जिसके साथ बोलें हफ्ते हफ्ते। तो एक जगह पे ना, एक रेस्टोरेंट पे हम लोग गए, तो उधर ना मुझे वो पगड़ी वाले हमारे सिख भाई हैं वो नज़र आए। ऐसी खुशी हुई जैसे सहरा में कोई अपना मिल जाता है ना। बोली, ये जुबान जो है ना, इसकी ऐसी एक कशिश है, या आपका इलाका या आपके लोग, इसकी ऐसी कशिश है। तो जो इलाका होता है उसमें फितरत के साथ आप ये जुड़ जाते हो। तो वो सिख भाई मुझे मिले ना, तो मैं बैठ गया, मैं उन्होंने नाल जाके जनाब गप्पा ते पंजाबी, तो ऐसे लगे जैसे आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, इस तरह लगता था जब उन सिख साहब से मुलाकात हुई हमारी। खैर, डूबे ले डूबे हमें जी, डूबे जी। हाँ भाई, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ, हमारी सिस्टर थी, आप बीच में बोल रहे थे, तो वो मछली मंडी से बेहतर है कि एक एक बात हो जाए, हैं डूबे जी? हाँ जी, समझ नहीं आई बात क्या हुई ना, समझ ही नहीं आई। इंग्लिश में बात करते तो समझ में भी आती है, हिंदी में ये बात कर बात रहे हो, पता नहीं क्या था वो वो छोड़ो, उर्दू। इंग्लिश क्या है, पंजाबी से बड़ी जुबान ही कोई नहीं। अब लतीफा सुन लो, एक पंजाबी बैठा था, एक उर्दू वाला बैठा था, एक अंग्रेज बैठा था। उन तीनों ने कहा कौन सी जुबान ज्यादा फुर्तीली है, चुस्त है, कि जल्दी जल्दी सारे काम खत्म हो जाए। गोरा कहने लगा हमारी। उसने कहा कैसे? कहता देखो, मैंने कमरे में आना हो तो मैं बोलता हूं मे आई कम इन। कैसे? जल्दी से मे आई कम इन, 3-4 वर्ड है, मैं आ जाता हूं, इज्जत एहतराम भी। जो उर्दू वाला था उसने कहा यार हमारी ज्यादा जबरदस्त जुबान है, कॉम्प्रिहेंसिव। उसने कहा कैसे? कहता देखो, मैं कहता हूं मैं आ जाऊं तो आपसे भी कम वर्ड हैं, जल्दी जल्दी बात हो गई। पंजाबी वाले ने कहा ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, वो मेरे वर्गा कोई जट जा बंदा सी। उसने कहा ये नहीं मैं आई कम इन, मैं आ जाऊं। उसने कहा मैं बोलता हूं वड़ा, तो सारे चुप हो गए, क्योंकि पंजाबी में मैं आई कम इन के लिए यही इस्तेमाल होता है कि मैं वड़ा। तो मकसद कहने का ये है पंजाबी को हल्के ना लें जी, ये बड़ी शानदार। मैनू पंजाबी नहीं आती।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਬਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰੀ ਸੀ तन्नी तन्नी समझ में आंदी, थोड़ी थोड़ी सी। बस ठीक है, पंजाबी के साथ आपने कर दिया। किधर गए? मैंने नहीं निकाला भाई, ये पंजाबी ने गुस्सा निकाल दिया आप पे। मैंने नहीं निकाला, आप चले गए हैं, स्टेज से बाहर हो गए। जुबान पर लतीफा आया तो मुझे एक और लतीफा याद आ गया। एक अरब और गोरा बैठे थे, जुबान के ऊपर तबसरा चल रहा था। तबसरा चलते चलते गोरे ने कहा कि इंग्लिश जुबान ज्यादा जो है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव और ज्यादा जो है वो रैपिडली चीजों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अरब कहता नहीं हमारी है। उसने कहा मिसाल दे दो। टेबल पर पड़ा हुआ था एक पानी का गिलास, दोनों टेबल पे बैठे बातें कर रहे थे। तो गोरे ने देखकर पानी के गिलास को, उसने कहा देखो ये गिलास का पानी, गिलास पड़ा हुआ है ना पानी का, तो मैंने अगर इसको बोलना हो कि ये मेरा पानी है तो मैं बोलता हूं माई वाटर। 2 वर्ड्स, वाओ, जल्दी जल्दी चुटकी में, माई वाटर, मेरा पानी। तो अरब ने आगे से कहा कि तुम्हें वाटर डालना पड़ता है, मुझे सिर्फ माई बोलना पड़ता है, वाटर नहीं डालना पड़ता, तो मेरा हो जाता है काम। तो मकसद कहने का ये है कि जनाब जुबानों का अपना लुत्फ है और जुबानों की अपनी मजे की चीजें हैं। मगर ये मानना आपको पड़ेगा कि कुछ जुबानों में ना मिठास पड़ी होती है। कुछ जुबानें ऐसी होती हैं कि उसमें आप गुस्सा कर लो, लड़ाइयां कर लो, ऐसे लगेगा कोई आपसे प्यार कर रहा है जी, प्यार मोहब्बत। जैसे कि फारसी है, जैसे कि उर्दू है। बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती कि मुझे गालियां पड़ रही हैं। उर्दू जी बड़ी प्यारी अदब की, मोहब्बत की जुबान। और हकीकत यह है कि अगर आपने किसी की छितर-पोला करनी हो तो दुनिया में पंजाबी से बेहतर जुबान कोई नहीं। 5-5 किलो की तो गाली होती है, जहां पड़ती है डेंट डाल देती है, और निशान अगली 2 नस्लों तक जाता नहीं। एडी हैवी गाल पंजाबी की, और निकालते हुए भी मुंह भर जाता है, यानी बंदे को पता चलता है कि मुंह भर गया है शब्दों से। ये जुबान के कमाल है, जुबान की अपनी एक चक्कर है। दोस्तों बातें तो बड़ी हैं, बातें तो चलती रहेंगी, मगर आज की स्ट्रीम बड़ी मजे की रही, मैंने बड़ा एंजॉय किया। 5 घंटे स्ट्रीम को ऊपर हो गई है। अभी भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह 900 से ज्यादा लोग बैठकर सुन रहे हैं। और 1 मिनट में देखूं ये पीछे कौन आया है, अगर कोई काम। गौरव भाई कह रहे हैं मुझे लें जी, गौरव भाई दोबारा आए जी। गौरव भाई, हेलो आमिर भाई, आवाज आ रही है? जी जी गौरव भाई बिल्कुल आ रही है। वो कह रहे थे आप कोई जो है ना दोबारा आना चाह रहे हैं, तो मैंने फिर ले लिया जी। मैं वो आगे आपसे डिस्कस करना चाहता था, मैं चाह रहा था और चीज़ों पे थोड़ी बात हो जाए, मैं आपसे और थोड़ा इस चीज़ में सीख सकूं, थोड़ा मतलब डिस्कशन कर सकूं, इसलिए मैं चाहता था। वो तो मैंने आपको ईमेल दे दी है, तो आप इंस्टाग्राम पे राब्ता करें, बाकी बातें तो फिर बाद में होंगी, बाकी गल्ला फोन पे। बेशक। हाँ जी, मैं क्योंकि यही चाहता था कि मैं मतलब मेरा एक वर्क था कि मैं चाहता था कि मैं आपके थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं ना कहीं मैं ये इस तरह से मुस्लिम जैसा वर्क करे कि ये जो बेवकूफ हिंदूज हैं इनको मतलब कैसे समझाया जाए कि भाई इन्हें अपने हिंदुज्म को समझना चाहिए। मैं इस चीज पे जानना चाह रहा था कि मैं इन्हें कैसे मतलब फिर बताऊं। इनके समझाने के मेरा भाई 2 तरीके हैं, तीसरा कोई भी नहीं। हाँ जी। 2 तरीके। एक ये है कि इनको लीगली पटा डाला जाए, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, वो तो अभी होने का नहीं, ठीक है, वो तो अभी होने का नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि लीगली इनको पटा डाला जाए ताकि ये इंसान बने और देश का अमन और शांति खराब ना करें। और अगर कोई मुसलमान भी कर रहा है तो उसको भी पटा डाला जाए, दोनों को डाला जाए ताकि देश में अमन हो। मैं दोनों की बात करूंगा, अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है उसको पटा डालें, अगर कोई सनातनी गलत कर रहा है उसको भी डालें। क्योंकि जब एक घर के 2 बहन भाई लड़ रहे होते हैं, माँ बाप दोनों को साइड पे करते हैं, ये नहीं कि एक को थप्पड़ मारे और दूसरे को छोड़ दें, दोनों को चुप कराना होगा। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि मुसलमान बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, और हिंदू बोलता है तो उसको छुड़ा के ले आते हैं, उसको हार पहनाते हैं। ये एक घर के अंदर जब होगा आमिर भाई तो फिर बंदर बांट होगी, ठीक है। हाँ जी। ये ज्यादती खत्म कर, एक तरीका ये है।
दूसरा तरीका ये है कि हम इंसानों की तरह इनको कन्विंस करें, इनको समझाएं कि आप गलत कर रहे हो आर्ग्यूमेंट्स के जरिए। यही मेरा भाई तरीका है। ये दो तरीकों के अलावा तो कोई भी नहीं है। तीसरा एक तरीका है, मगर वो तरीका नहीं है, बेसिकली इलाज का, वो लाइलाज का तरीका है। वो एंड में आता है जिस वक्त कोई सोल्यूशन काम ना करे। ठीक है, तो क्या वो तीसरा तरीका अभी डिस्कस हो सकता है? मतलब थोड़ा बहुत आप उस पर अगर चर्चा करना चाहे तो। नहीं, वो थोड़ा तंग रास्ता है, उसकी गली थोड़ी तंग है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तीसरा रास्ता है वो आपके लिए तो नहीं है, ऑब्वियसली वो स्पेशल लोगों के लिए होता है वो रास्ता। ठीक है। हाँ ना। तो आमिर भाई, मैं आपसे अगर इंस्टाग्राम पे भी बात करना चाहूँ तो कब करूँ? इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज, मैंने आपको बताया, मुझे ये मैसेज करके लिख दीजिएगा। आप गौरव हैं जो इस टॉपिक पे बात हुई थी, इस्लाम में इंटरेस्टेड है, तो मैं इंशाल्लाह उसको देख लूंगा। मुझे आज या कल में ही मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फिर चेक करूंगा तो मैं इसी जहन से करूंगा कि मैं आपको देख लूँ। तो आप मुझे उसका नियर बाय थोड़ा टाइम बता दीजिए। मैं फिर क्या कहना, मेरे पास 2-3 टॉपिक्स है तो मैं उन पे बात, अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो उस टाइम पे, फिर उस टाइम के हिसाब से आपसे उस पे बात करूंगा। चले वो इंस्टाग्राम पे डिस्कस कर लेंगे ना, क्या ख्याल है ना? तो मैं आपको कब तक कोई मैसेज का टाइम शाम को मुझे करना चाहिए? आप कब, जब भी आपको लगता हो। आपका जब दिल करता है ना, अभी जाके मैसेज कर दें, मैं उसको चेक कर लूंगा। अभी करना भी कर दें, अभी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी बातें उधर कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद आमिर भाई। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरा भाई। गौरव भाई थे बड़े प्यारे भाई हमारे, यंग एक एनर्जेटिक बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, तो इंशाल्लाह इनके साथ बात होगी तो चीज़ें सुनेंगे। दोस्तों, आज की स्ट्रीम बड़ी मज़े की रही और आई होप सो कि आज की स्ट्रीम के अंदर जो एक स्पेशल सेगमेंट है वो आप लोगों ने मिस नहीं किया होगा। उसमें मुफ्ती साहब भी आए, हमारे समीर भाई जो कि एक्स मुस्लिम अभी तक हैं वो भी आए। उसको ज़रूर देखें जिन्होंने मिस कर दिया हुआ है उसको। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह उस पर मज़ीद बात होगी। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ कि पीछे 2 स्ट्रीम्स जो हैं मैं स्किप कर पाया किसी वजह से, मगर यह है कि आज चलें, कसर हमने पूरी की है। 5-5.25 घंटे की स्ट्रीम ऑलमोस्ट होगी हुई है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, गलती कुताई जो है वो माफ़ कीजिएगा, जिन भाइयों से भी हुई है उनकी माफ़ कर दीजिएगा। मैं अल्लाह तवक्कुल चलता हूँ, तो मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। इसी चीज़ के साथ दोस्तों, आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो चलें कर देते हैं। 1 मिनट, मैं नहीं करना चाह रहा था, चलें कर देते हैं। यार काम खराब हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, रहने देते हैं। चलें दोस्तों, इसी चीज़ के साथ मैं इजाज़त देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। जितने लोग आए उनको प्यार भरा जनाब पड़ा सलाम। जिन्होंने शेयर किया मुसलमानों ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, भाई ने नीचे जिक्र उसका कर दिया है, कमांड भाई ने, बट ये रेडी रहें जी, बस रेडी रहें। ठहरो ज़रा, मुझे देखने से प्राइवेट तो नहीं की है, प्राइवेट तो नहीं की हुई है, प्राइवेट कर गया बच गया तू, तुझे मैंने इबरत का निशान बनाना था। मैं वही बोलने लगा था, मैंने कहा कहीं याद ना आ जाए इसे, मैं वही बात बोलने लगा था। तू बच गया मेरे हाथ से। तुझे मैंने बोला था दम है तो प्राइवेट ना करना, तेरा मैं कीड़ा निकालता हूं। भिखारी हैं, डिजिटल भिखारी यार, कैसी तो देखो जरा हैं, दिमाग चेक करो इनका। यानी मैं अपनी स्ट्रीम कर रहा हूं, वो बंदा अपने चैनल पर बैठ के अपनी स्ट्रीम कर रहा है, वो मेरी सिखा के, वाह भाई वाह, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं हैं, मैं यहां बैठा हूं, यहां आ, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं क्या? तो मेरी लाइव वहां चला रहा है, प्राइवेट कर दिया इसने। अजीब तमाशा इनका। इंसान के बच्चे बन जाओ, और तेरे जैसे वो जितने पछवाड़े पुछूड़े हैं, एक कान खोल के सुन लो, ये टीटो पार्टी बंद करो। ये क्या नया तमाशा तुम लोगों ने? नहीं यार, ये तो ना एडम ने कभी ये किया, ना साहिल ने कभी ये किया, इस तरह की हरकत उन्होंने नहीं की। ये तो इतने चिंदी चोर, इतना नीचे गिर गए,
इस तरह की गंदी हरकतों पर आ गए हैं ये, कि अपना कुछ भी नहीं रहा बोलने को, दूसरे का चैनल लाइव चलाना शुरू कर दिया जी, और उस पर तबसरा कर रहे हैं, सुपर चैट इकट्ठी कर रहे हैं। वो इंसान के बच्चे बनो, बेशरम आदमी हो, बिल्कुल ही नीचे गिर गए हो, खोती के पुत्रो, शरुल बरिया, पागल दे पुत्र, सुअर। तो जरा कान खोल के सुन लो। अब जिसका पता चला ना जिसने ये हरकत की है, अच्छा फिर लेना देना भी कोई नहीं, या तो तू आया हो ना तो तू इस तरह की हरकत करने की कोशिश भी करे तो तुझे मैं रोकूं। समीर आया हुआ है, तूने बखरा अपना धंधा वहां चमकाना शुरू कर दिया उसके नाम पर। तो इंसान के बच्चे बन हैं, तुझे ना मैं इधर, तू नीचे ये एक मिनट ठहर जरा, थले आए इधर मैं कान खिंचा। इंसान का बच्चा बनो, भिखारी। ये क्या तमाशा तूने पकड़ा हुआ है, ये क्या चिंदी चोरों वाली हरकत है ओए, हैं? ये नीचे नजर आया मुझे, कीड़ा मकौड़ा। इंसान का बच्चा बन, कोई काम की बात कर, को मेहनत करके खा, को प्रेजेंटेशन बना, को काम कर, पता चले। अपनी स्ट्रीम पर बैठा है, स्क्रीन शेयर करके सस्ता जो है ना वो भिखारी, चिंदी चोर। तो इस तरह की हरकतें बंद कर, नहीं तो डंडा दे दूंगा, फिर तू चीखेगा। हमने उसूल बनाया हुआ है, हम किसी को स्ट्राइक नहीं देते। वीडियो पे कोई एतराज है उसको चलाओ, उसके ऊपर बैठकर रेफरेंसेस करो, हैं? तूने की ना पब्लिक, तो मैं तुझे बता रहा हूं, तू नीचे बैठा ना, तेरी मोरी के अंदर मैं तीर घुसेड़ दूंगा। ये हरकत ना करी आज के बाद, अगर तूने पब्लिक की वो, ये बात याद रखी। मैं पूरा माइंड बना चुका हूं, तेरे कान पकड़ाकर मैं दूसरे स्टूडेंट्स को ठीक करूंगा, ये मैं तुझे बता दूं, क्योंकि तेरे जैसे और भी कई फिर रहे हैं यहां पर, हरामी, ड्रामेबाज। करना जाना आता जाता कुछ भी नहीं है, सुअर के बच्चे। भाग जा यहां से, चल भाग जा, ब्लॉक मारो से, चल दौड़ जा यहां से, खोती के पुत्र। और वो दूसरा क्या है, वो नीचे सनातनी भी, ओए ठुक जाएगी, ठुक जाएगी, जल्दी से प्राइवेट कर दे, ठुक जाएगी। अच्छा, जैसे ही मैंने बोला ना मैं करने लगा, साथ ही इसने हटा दी स्ट्रीम। तुझे क्या लगता है बेटा, मुझे पता है मैं तुझे कहां से मोरी पे मारना है। ये तेरी किस्मत अच्छी है, तूने प्राइवेट कर दी है, ये तेरी किस्मत अच्छी है। मेरी स्ट्रीम बंद होने से पहले पहले तूने प्राइवेट कर दी है, नहीं तो मैं छिल के रख देता। भाग जा, यहां से नजर ना आई मुझे। ठीक है दोस्तों, इसी चीज के साथ वो मैं जिक्र एंड में नहीं करना चाह रहा था, मगर मैंने एकदम देखा तो उसने प्राइवेट कर दी हुई है। मैंने कहा चलो अब मेरी दाढ़ के नीचे से बच गया एक बार। हाँ, अपना ख्याल रखें दोस्तों, गलती कोताही माफ कीजिएगा। इंशाल्लाह होपफुली आपको मिलते हैं अगली स्ट्रीम में उसी रूटीन के साथ। खुश रहें, सलामत रहें, इस्लाम से जो है ना वो अपने सीनों को मुनव्वर रखें और सीखते सिखाते रहें। फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फीमान अल्लाह।